Hello, everybody. I hope you're having an amazing afternoon, amazing morning, amazing evening, whatever time of the day you're watching this lecture. And this is Educator Dia, and we're back with another video. And now we are covering lecture number 4, lecture number 3 rather. I'm sorry. We are dealing with lecture number 3 of aldehydes, ketones, and carboxylic acids. One of the biggest chapters that we have in the class 12 syllabus. So yeah, I think this chapter will take at least 9 to 10 classes for its completion. So sit back, lay back. I hope you've been enjoying the video lectures thoroughly. I'm trying my level best from my end to impart my understanding of organic chemistry to all of you in the simplest words possible. ठीक है मैं despite coming with notes I make sure कि मैं उन्हें दोबारा लिखूं to ensure that the concept is drilled into your head, and the entire intent is to make learning fun and the concepts super palatable for all of you, and I wish to do exactly that. Without much talking, let's dive right into it and let's get started with lecture number 3 of aldehydes, ketones and carboxylic acids. I hope you're all ready. ठीक है, सबसे पहले let's quickly do let's do a quick revision. ठीक है, हमारी speed थोड़ी relatively fast रहेगी, but अगर आप if you want to increase the speed or reduce the speed, then you can adjust the speed accordingly. You can switch to 1.5 or however you like it, right? Okay, quick revision. Let's first do a quick revision. तो अभी तक हमने पिछले 2 lectures में क्या किया है, ठीक है? सबसे पहले we got introduced to the whole concept of aldehydes, ketones and carboxylic acids की वो compounds होते हैं which have the carbonyl C double bond O functional group जिनमें होता है. Then we did the nomenclature aldehydes का, ketones का, carboxylic acids का nomenclature मैं actually जब carboxylic acids पढ़ाती हूँ तभी कराती हूँ separately. ठीक है, मैं aldehydes ketones के साथ club नहीं करती उसको. I do it separately. That's my way of functioning. ठीक है, मैं उसको separately पढ़ाऊँगी when we will discuss carboxylic acids. ठीक है, फिर हमने करा था structure of this carbonyl group. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप करा था कि इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, and ये sp2 hybridized carbon होती है, the bond angle is 120 degree and all of that. Then we discussed isomerism in aldehydes ketones की chain isomerism, position isomerism, metamerism, tautomerism, ये सब पढ़ा था. Then we discussed the common methods of preparation of aldehydes and ketones, right? हमने common methods of preparation पढ़े थे aldehydes और ketones के. सबसे पहले हमने पढ़ा था oxidation of alcohol. By oxidation of alcohol कि कैसे primary alcohols oxidize to give aldehydes and secondary alcohols oxidize to give ketones. फिर हमने dehydrogenation of alcohol पढ़ा था. ये method specifically work करता है for volatile alcohols. ठीक है, फिर हमने हाइड्रोकार्बन से aldehydes और ketones को प्रिपेयर करना सीखा था. पहला मेथड था by ozonolysis of alkenes. ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे ozonolysis of alkenes अगर मैं क्विक ओवरव्यू दूँ तो सबसे पहले हम ओजोन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. ठीक है, उसके बाद हमने करा था हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस करा था. ठीक है, उसके बाद हमने डील किया था विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स, स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें हमने डिस्कस किया था एक नेम रिएक्शन, रोजनमंस रिडक्शन. ठीक है, जहाँ पे हमने एसिड क्लोराइड विच इज़ RCOCl, ठीक है, एक एसिड क्लोराइड का मैंने रिडक्शन कराया था. रिडक्शन मीन्स अगेन रिएक्शन विद हाइड्रोजन. रिडक्शन कराया था विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, और इसको पॉइजन मैंने कराया था विद सल्फर क्विनोलिन, और इस पूरे को मैं एक्चुअली बोलती हूँ लिंडलास कैटलिस्ट. तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, जैसे कि मैंने बताया था, इस हाइड्रोजन को हम ऐसे ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, एक H एक Cl के साथ रिएक्ट करके HCl हो जाएगा एंड दिस वुड फॉर्म RC डबल बॉन्ड OH. ठीक है, तो वी गेट एल्डिहाइड प्लस HCl. ये था रोजनमंस रिडक्शन. ठीक है, दिस इज क्विक रिविजन, दिस इज नॉट हाउ आई टीच, ये क्विक रिविजन ऑफ द प्रीवियस 2 चैप्टर्स. ठीक है, फिर हमने प्रिपेयर किया था एल्डिहाइड्स को फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स. तो उसमें पहला मेथड हमने किया था स्टीफन्स रिएक्शन या स्टीफन्स रिडक्शन, जिसमें हमने एग्जैक्टली क्या किया था, अल्काइल नाइट्राइल्स है जो, ठीक है, अल्काइल नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड्स का हमने रिडक्शन कराया. रिडक्शन में तो अगेन गेन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो आप हाइड्रोजन को ऐसे लिख लो या फिर 2 हाइड्रोजन एटम्स की फॉर्म में लिख लो, हाउएवर यू लाइक इट. ठीक है, तो हमने अल्काइल साइनाइड्स का रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, और यहाँ पे हमने नहीं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस में हमने अल्काइल साइनाइड्स का रिडक्शन कराया हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 विच इज़ स्टैनस क्लोराइड एंड HCl. तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, pi1 टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया. द स्ट्रक्चर अभी एक्चुअली गॉट वाज RCH डबल बॉन्ड NH, जो कि था इमीन. ठीक है, इमीन का जब हमने फर्दर हाइड्रोलिसिस किया, इमीन ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ वाटर का ऑक्सीजन आ गया, यहाँ H2 आ गया. व्हाट वी एक्चुअली एंडेड अप गेटिंग वाज RCHO प्लस NH3 अमोनिया गैस साइड प्रोडक्ट की तरह फॉर्म हो जाती है.
ठीक है, सो फार सो गुड। नाइट्राइल एस्टर्स से एक और मेथड हमने यूज़ किया था, दैट वाज यूजिंग डाइबाल एच। ठीक है, एक मिनट, डाइबाल एच, अब इसको मैं एक सेपरेट पेज पे समझाती हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, डाइबाल एच से अब देखो एग्जैक्टली हम डाइबाल एच से कैसे प्रिपेयर करते हैं। डाइबाल एच मैंने आप सबको बताया, डाइबाल एच क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डेफिनेशन याद रखिए, मतलब जस्ट रिमेंबर द एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, लिखते कैसे हैं, डाई 2 टाइम्स आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लेट्स से कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। अब हम इसका क्या रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, यूजिंग डाइबाल एच। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं डाइबाल एच के साथ। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इसका भी मैकेनिज्म वैसे ही होता है बिल्कुल, कि सबसे पहले हम अल्काइल साइनाइड से इमीन्स बनाएंगे, इमीन्स का जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सबसे पहले डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, ये हो गया डाइबाल एच से रिडक्शन कराना। अब उसके बाद ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर का ऑक्सीजन यहाँ पे और H2 यहाँ पे। सो ये एक तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, विच इज़ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। अलॉन्ग विद दैट व्हाट वी एक्चुअली एंड अप गेटिंग इज NH3। हमें क्या मिलता है, NH3। आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हमें NH3 मिलता है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला, ये मिला। अब बस एक क्विकली एक रिडक्शन ऑफ एस्टर्स भी देख लेते हैं, एस्टर्स का रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, जैसे लो CH3, हम कोई बड़ा सा एस्टर ले लेते हैं, CH2 होल 4 C ट्रिपल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O, CO C2H5। ठीक है, तो ऑफकोर्स एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCOO R डैश। ठीक है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं ना, ये हो गया RCOO R डैश। ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्मूला। अब इस एस्टर्स के केस में ना हम क्या करते हैं, एस्टर्स के केस में ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है। ठीक है, और जब हम ये रिएक्शन कराते हैं यूजिंग डाइबाल एच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तब हमें एक्चुअली में क्या मिल रहा होता है, वी हैव CH3 CH2 होल 4 CH2 4 बार। ठीक है, देन C डबल बॉन्ड हो, और ये जो बॉन्ड टूटा यहाँ से एक हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाता है एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी एक्चुअली एंड अप ऑब्टेनिंग। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब हम बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड लेट्स सी हाउ डू वी गो अबाउट इट। ऑलराइट, देखो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में से भी सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे मिथाइल बेंजीन का। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर मिथाइल बेंजीन क्या होता है। मिथाइल बेंजीन इज नथिंग बट टॉलिन। बेंजीन पे CH3 ग्रुप जब लगा होता है, मिथाइल ग्रुप, तो दिस इज रेफर टू एज मिथाइल बेंजीन। मिथाइल पे बेंजीन पे मिथाइल बेंजीन, या बेटर नोन एज टॉलिन। टॉलिन से ज़्यादा जानते हैं हम इसे, मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। तो देखो ये हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं मिथाइल बेंजीन का। तो देखो अगर क्या होता है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, तो ये जो लाइंस है ये हम सब बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिएक्शन इम्पार्ट करती हूँ एंड देन वी विल रीड द लाइंस एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो अगर आपने ये टॉलिन लिया या मिथाइल बेंजीन लिया, मिथाइल बेंजीन को अगर आप रिएक्ट कराते हो विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करता है ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, विच इज COOH। ठीक है, तो ये मिथाइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर देता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड बन जाता है। राइट, मिथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बन जाता है। बट ये क्या, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो हम चाहते नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज हो। कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले क्या आता है, एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मिथाइल बेंजीन सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज तक ऑक्सीडाइज हो एंड शुड नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे तो ये मिथाइल बेंजीन विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, but it is possible to stop the reaction at the aldehyde stage. How do we do it? Using certain special reagents. ठीक है, जैसे कि क्रोमाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, मैं आगे बताऊंगी, डोंट वरी। एक एक चीज़ को अच्छे से डाइसेक्ट करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि क्रोमाइल क्लोराइड हो गया रीजेंट। ठीक है, फिर हम मिथाइल बेंजीन को हम एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन की अगर मैं बात करूँ, सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन ऑक्सीडाइज टॉलिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू बेंजोइक एसिड्स। जैसे कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे,
टॉलिन या फिर उसके डेरिवेटिव्स को किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे, टू बेंजोइक एसिड. हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट द एल्डिहाइड स्टेज. हाउएवर हम सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज पे भी ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं. ठीक है, इसके बावजूद हम लाइक एल्डिहाइड स्टेज तक भी ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट द एल्डिहाइड स्टेज. हाउ डू यू डू दैट? यूजिंग सूटेबल रिएजेंट्स. सूटेबल रिएजेंट्स यूज़ करो जो क्या करेंगे, जो आपके मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे एक इंटरमीडिएट में. वो इंटरमीडिएट सिर्फ एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज होगा बट विल नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नाउ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर दिस पर्पस. अब यहाँ पे कुछ मेथड्स दे रखे हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए. पहला है यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड. ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है? एक ऑरेंज कलर का एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, रेड ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. ठीक है, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड इज नथिंग बट क्रोमाइल क्लोराइड इज CrO2Cl2. ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2Cl2. आप देखो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. पहली बात ये एक नेम रिएक्शन एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है, तो प्लीज़ पे अटेंशन, मेक श्योर ऑल योर फैकल्टीज आर इन्वॉल्व इन द सेशन. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लिया टॉलिन या मिथाइल बेंजीन. ठीक है, टॉलिन या मिथाइल बेंजीन, इसका जो हमने रिएक्शन करा है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ विच इज़ CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट, तो हमें क्या मिलता है? हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस रिएक्शन को छुपा भी दूँ, इफ़ आई हैव टू हाइड इट, लाइक समझते हैं पहले आप, बिकॉज आधे लोगों का दिमाग तो उधर ही जा रहा होगा कि लाइक व्हाट आर वी एक्चुअली ऑब्टेनिंग, ऑल ऑफ दैट ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, अभी रुकते हैं, अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, लेट मी हाइड द रिएक्शन. इज देयर अ बेटर वे टू हाइड इट? ओके, देयर इज सर्टेनली यस. ठीक है, अब मैंने इसको हाई से हाइड कर दिया. ठीक है, सो अब आप मेरा प्लीज़ पे अटेंशन ऑन व्हाट आई एम सेइंग रादर देन ऑन द नोट्स दैट आई हैव ब्रॉट. ठीक है, मैं भले नोट्स लेके आती हूँ बट आई मेक श्योर कि मैं सब कुछ दोबारा लिखूँ. ठीक है, नॉट टू ड्रिल इट इनटू योर हेड, बट वो है कि मैं नोट्स आराम से लिख लेते. सो ये तो आई कैन इरेज इट, सो द नोट्स यू कैन रेफर इफ़ यू वांट टू क्रिएट नोट्स. ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं बोल रही थी, हमने मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन करा किसके साथ? CrO2Cl2 which is nothing but chromyl chloride in the presence of carbon disulfide as a solvent. यहाँ पे हमें एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है, which looks somewhat like this. ठीक है, CHO CrOH HCl2 whole twice. ठीक है, ये इंटरमीडिएट जनरेट होता है, इसको क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ये क्या जनरेट हुआ? क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ. और ये जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दिस ऑन, जिसका जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस फर्दर ऑक्सीडाइज जाएगा. दिस वॉट फर्दर ऑक्सीडाइज टू बेंजीन पे CH, और ये पूरा ग्रुप ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू ऑक्सीजन. ठीक है, तो हमें क्या मिला? बेंजीन पे CHO इज नथिंग बट बेंजेल्डिहाइड. बेंजीन पे CHO ग्रुप इज नथिंग बट बेंजीन पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप, तो बेंजेल्डिहाइड हो जाएगा. बेंजीन का एल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड. ठीक है, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा. ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर. तो एग्जैक्टली दिस इज हाउ वी एग्जैक्टली गो अबाउट इन दिस रिएक्शन. ठीक है, मैं इसको आपको अपने नोट्स की मदद से एक बार रिपीट करती हूँ, नॉट इंश्योर कि एकदम ठीक समझ आया आपको. तो देखिए एग्जैक्टली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने टॉलिन लिया या मिथाइल बेंजीन लिया. ठीक है, बेंजीन पे CH3 विच इज़ मिथाइल बेंजीन या टॉलिन का हमने रिएक्शन कराया CrO2Cl2 विच इज़ नथिंग बट क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट. अब क्या होगा? कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट हमने यूज़ किया बेंजीन. ठीक है, का रिएक्शन हमने कराया इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट. तो हमें यहाँ क्या मिला? CH. ठीक है, इंटरमीडिएट जो जनरेट हुआ था CHOCrOHCl2 होल ट्वाइस. अब देखो इंटरमीडिएट्स को याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है. आई एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ पर्सनल बिलीवर ऑफ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड निमोनिक्स. बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस होंगे इवन व्हेन आई टीच बायोलॉजी जब मैं आपको निमोनिक्स दूंगी. आई व्हेन आई नो कि शायद बच्चा कंफ्यूज हो सकता है. एंड ऑल्सो नॉट आई एम लाइक आई एम क्रिएटिंग सम सुपर हीरो सॉन्ग्स और मूवीज, इसने इसको मारा, उसने इसका ये कर दिया. नन ऑफ दैट इज गोना हैपन इन दीज क्लासेस बिकॉज that's what I have learned from my teachers कि आप अपने just simplify things for yourself. ठीक है, do not complicate it, do not clutter it for yourself and make it more chaotic. आप खुद के दिमाग को इसे कंडीशन कर रहे हो कि अरे हर चीज़ का ट्रिक बना लो, फिर ट्रिक को याद करने की भी ट्रिक बना लेते हो, ट्रिक बनाते हैं. अल्टीमेटली it gets so chaotic and so muddled in the exam center that you're not able to recollect even one single mnemonic. ठीक है, तो प्लीज़ अपने simplify it for yourself, simplify your life. जो कॉन्सेप्ट जैसा है उसे एज इट इज़ कीजिए. या आई डू अंडरस्टैंड दैट ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे निमोनिक्स के बिना
इट डज गेट डिफिकल्ट, हाँ ठीक है, बट हर चीज़ का निमोनिक बनाना, हर चीज़ के लिए ट्रिक ये नहीं होते. नो मैजिक वन, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. इफ़ यू हैव टू टेक द हार्ड वे, यू हैव टू टेक द हार्ड वे, यू हैव टू लर्न इट द हार्ड वे. उसके बाद कोई नहीं. मैंने भी ऐसे याद किया. देखो, अब मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ कि हाउ डू आई लर्न इट. मैं रिमेंबर उसको याद कैसे रखता हूँ, मुझे रटा हुआ नहीं है, किसी को भी नहीं होता है फॉर दैट इंस्टेंस. ठीक है, जब हमने टॉलिन का रिएक्शन कराया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2 Cl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो मैं कैसे इसको याद रखती हूँ. ठीक है, आई नो इट माइट साउंड वेरी वियर्ड, बट एज लॉन्ग एज इट हेल्प्स यू रिमेंबर द इंटरमीडिएट. पूछ लेते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, ऑफकोर्स आपको TUET में, नीट में तो कोई नहीं पूछेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो हमें पता था हमारे पास यहाँ क्या है, CH3 था, राइट. CH3 था, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे. अब आगे देखना 2 हाइड्रोजन आगे जाके भी सब्सटीट्यूट होंगे. उसकी जगह क्या आ गया, हम क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं. क्रोमाइल क्लोराइड है CrO2. ठीक है, एक वो आगे आएगा Cr के, एक वो पीछे आएगा, CrO2 हो गया. अब Cl2 से पहले एक H लगा दो, HCl2 होल ट्वाइस. ठीक है, आई नो जिसके लिए वर्क्स, इट हेल्प्स मी रिमेंबर द कॉन्सेप्ट एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई रिमेंबर इट. तो CHOCRO HCl2 होल ट्वाइस. ठीक है, इंटरमीडिएट बना. उसको जब हमने फर्दर हाइड्रोलिसिस किया, यू गेट बेंजल्डिहाइड. आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड. अब क्रोमिक ऑक्साइड से एग्जैक्टली हम कैसे बनाते हैं, लेट अस सी. ओके, 1 सेकेंड. अब देखो, क्रोमिक ऑक्साइड से पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देती हूँ कि कैसे बनाते हैं, देन हम उसको फाइनली लिखेंगे. देखो, सबसे पहले हमने लिया टॉलिन. अब यहाँ पे टॉलिन का हम रिएक्शन कराते हैं क्रोमिक ऑक्साइड से. क्रोमिक ऑक्साइड इज नथिंग बट CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड इज CH3CO होल ट्वाइस. ऑक्सीजन. अब आप बोलेंगे मैम ये तो आपने रटवा दिया. रटवाया नहीं है, समझा देती हूँ. 2 एसिटिक एसिड लो, 2 एसिटिक एसिड लो. 1 सेकेंड. देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, एक और एसिटिक एसिड लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, अब 2 एसिटिक एसिड हैं. ठीक है, इनमें से एक ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, वाटर रिमूव कर दो, OH और H हटा दो, तो ये वाटर हट गया. ठीक है, व्हाट डू यू एक्चुअली एंड अप ऑब्टेनिंग हियर, CH3 C डबल बॉन्ड O. ये कॉमन O है ना, ये कॉमन ऑक्सीजन बचेगा. ठीक है, दिस एज यू कैन क्लियरली सी O C डबल बॉन्ड O CH3. तो हम क्लियरली देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O 2 बार आ रहा है, राइट. CH3 C डबल बॉन्ड O 2 बार आ रहा है, और ये साइड में एक ये कॉमन ऑक्सीजन, ये कॉमन ऑक्सीजन. आई होप आपको पता चल गया कि एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे डिराइव होता है. अब हम टॉलिन का रिएक्शन क्रोमिक ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड व्हिच इज CH3CO होल ट्वाइस O. ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 से 283 केल्विन, विच इज 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है. ठीक है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है, बहुत ही लो टेम्परेचर है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के अराउंड. अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट जनरेट होगा विच वुड लुक समथिंग लाइक दिस. मैंने बोलता है CH3 है. देखो, 2 हाइड्रोजन्स तो रिप्लेस हो रहे हैं. 2 हाइड्रोजन्स की जगह यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड. देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, CH3CO होल ट्वाइस O. ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड CO ये है ना, CO2 है, राइट. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते एक ऑक्सीजन आगे आएगा, एक ऑक्सीजन पीछे आएगा, देन वी हैव CH3 होल ट्वाइस. दैट्स हाउ आई रिमेंबर इट. मैं एक और बार आपको समझा देती हूँ कैसे. ये बेंजीन पे हमने CH लगाया. ठीक है, अब यहाँ पे जब मुझे इंटरमीडिएट लिखना है, तो इंटरमीडिएट में मुझे क्लियरली दिख रहा है ये है CH3CO होल ट्वाइस, CH3CO होल ट्वाइस O. ठीक है, अब मैं क्लियरली देख सकते कार्बन के यहाँ पे COO, ये O भी तो इसका पार्ट है ना, तो एक ऑक्सीजन आगे, एक ऑक्सीजन पीछे, CO, और यहाँ क्या आ गया, CH3, और ये पूरा होल ट्वाइस. तो दिस इज द इंटरमीडिएट दैट यू एक्चुअली गेट. और इस इंटरमीडिएट का नाम है एक्चुअली बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट. ये एक इंटरमीडिएट है. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरमीडिएट, इट इज बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट. ठीक है, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, ये जो है हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. और जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, इसको इस इंटरमीडिएट का फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें एक्चुअली में क्या मिलता है, हमें मिलता है CH. दिस गेट्स ऑक्सीडाइज हो जाता है टू ऑक्सीजन, तो यहाँ हमें मिल जाता है बेंजल्डिहाइड. और ये जो है गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ मिल जाता है 2 मोल्स ऑफ CH3COOH. ठीक है, 2 मोल्स हमें एसिटिक एसिड के मिल जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एसिटिक एसिड के. ठीक है, अब दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर. मैं एक और बार क्विकली समराइज कर देती हूँ अपने आप को, समझाने की कोशिश करती हूँ. 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर. वंस अगेन रिएक्शन को छुपाते हैं. लेट्स हाइड द रिएक्शन एंड लेट्स डू इट आवरसेल्व्स.
ठीक है, टू इंश्योर कि सब समझ आ रहा है, वी आर नॉट मगिंग अप एनीथिंग। ठीक है, चलो अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, 1 सेकेंड, ऑलराइट, ओ माय गॉड, चलो ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने लिया टॉलिन विच इज मिथाइल बेंजीन का हमने रिएक्शन किसके साथ करा है, क्रोमिक ऑक्साइड विच इज CrO3 in the presence of acetic anhydride which is CH3CO whole twice O। I hope that is very clear। इसके साथ कराया तो this would lead to the formation of an intermediate, और वो जो intermediate बना इसको मैं let me write it down here, intermediate looks somewhat like this। ठीक है, बेंजीन पे CH, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, वहाँ पे इसकी जगह इंटरमीडिएट बना विच इज CH। ठीक है, O CO CH3 होल ट्वाइस। ठीक है, और इसका ये बेंजाइलिडीन एसीटेट बना। क्या था इंटरमीडिएट का नाम, इंटरमीडिएट का नाम था बेंजाइलिडीन एसीटेट नाम का इंटरमीडिएट बना। अभी बेंजाइलिडीन एसीटेट ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस H3O+, जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एक्चुअली में क्या मिल रहा है एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये CH और दिस विल ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, ये हो जाएगा CHO, हमें बेंजाइल्डिहाइड, बेंजीन पे एल्डिहाइड बेंजाइल्डिहाइड मिला और 2 मोल्स मिले एसिटिक एसिड के विच इज CH3COOH। आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब हम चाहें तो वी कैन सी इट फॉर आवर सेल्व्स, यू डोंट हैव टू टेक माई वर्ड फॉर इट, दिस इज एग्जैक्टली हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स। ठीक है, मैच कर लो एल्डिहाइड्स का रिएक्शन CrO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विच इज CH3CO होल ट्वाइस O। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 से 283 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे जो हमें इंटरमीडिएट मिला इट इज़ बेंजाइलिडीन डाईएसिटेट, सॉरी my bad, which is why I'm not shying away from the fact that as a human we can all make mistakes, but as long as we learn from the mistakes is what really matters। ठीक है, तो हमें बेंजाइलिडीन डाईएसिटेट मिला और जो इंटरमीडिएट है उसका फॉर्मूला है दिस बेंजीन CHOCO CH3 होल ट्वाइस, which on further hydrolysis और थोड़ा सा हीट करेंगे will give us benzaldehyde and 2 moles of acetic acid। I hope that is very very clear। ठीक है, moving on to the next one। नेक्स्ट इज बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब क्या कर रहे हैं, अब जो नया मेथड है इट इज़ बाई साइड चेन क्लोरिनेशन। क्या करें, साइड चेन क्लोरिनेशन, ऑफ साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली क्या करते हैं, अगेन हमने लिया टॉलिन विच इज मिथाइल बेंजीन का साइड चेन क्लोरिनेशन, क्लोरीन ऐड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, क्लोरीन ऐड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, तो यहाँ पे क्या मिला बेंजीन। ठीक है, बेंजीन पे अब यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है बेसिकली। अगेन बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया वो ट्रिक याद रखो। ठीक है, CH3 है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन तो सब्सटीट्यूट हो ही रहे हैं, 2 हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो रहे हैं। अब हम क्लोरिनेशन करा रहे हैं, ठीक है, इसका टॉलिन का जो हम क्लोरिनेशन करा रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो मैंने बोला 2 हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो रहे हैं सभी रिएक्शन में एज यू सॉ। ठीक है, तो यहाँ पे CHCl हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है बेंजाइल क्लोराइड, मतलब बेंजीन CHCl2। ठीक है, तो ऐसे Cl ऐसे प्रेजेंट होंगे। दिस ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। 373 केल्विन इज नथिंग बट समवेयर अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। 373 केल्विन, या इट्स अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसका क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, व्हाट डू यू एक्चुअली एंड अप ऑब्टेनिंग, बेंजीन पे CH था, अब ये Cl की जगह हाइड्रोलिसिस पे यहाँ आ गया एक OH, यहाँ पे आ गया एक OH। और दिस इज जेम डायोल। जेम डायोल बेसिकली क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स विच हैव 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम। ठीक है, तो जेम डायोल्स की मैंने लिखी है, जेम डायोल्स को हम 1,1 डायोल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हम क्लियरली देख सकते हैं विद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड बोथ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। ठीक है, एंड दी स्ट्रक्चर्स दैट टिपिकली अनस्टेबल, ये काफ़ी अनस्टेबल होती है ये वाली ये जेम डायोल वाली फॉर्म, एंड विच इज़ वाई दे रेडिली डिहाइड्रेट, इनमें तुरंत वाटर लॉस हो जाता है, दे ईजिली डिहाइड्रेट टू फॉर्म द मोर स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आई होप दैट इज़ क्लियर। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला ये जो है जिसमें बोथ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, द 2H ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, द हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दे रेडिली गो डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो तुरंत डिहाइड्रेट जैसे तुरंत पानी निकल जाता है, एंड व्हाट डू वी एक्चुअली गेट हियर, वी गेट बेंजीन पे CHO, बेंजाल्डिहाइड। आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन बाय गेटमैन कोच।
अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पूछो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वी हैव इन द सिलेबस इज गेटमैन कोच। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन have been asked ईयर आफ्टर ईयर। यहाँ पे देखो बेंजीन का हम रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड एनहाइड्रस AlCl3 विच इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे कॉपर 1 का सॉल्ट है ये, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो एग्जैक्टली हम गेटमैन कोच रिएक्शन में कर क्या रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग बेंजीन या उसका कोई भी डेरिवेटिव, बेंजीन हो गया, बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव को हम ट्रीट कर रहे हैं विद कार्बन मोनोऑक्साइड। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड दिस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या एनहाइड्रस क्यूप्रस क्लोराइड। तो कॉपर 1 का सॉल्ट तो क्यूप्रस, ठीक है, कॉपर 1 क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड। तो हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा, या फिर अगर हम कोई बेंजीन का डेरिवेटिव यूज़ करेंगे तो हमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड मिलेगा, राइट। हम बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव को ट्रीट करते हैं विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड। तो हमें एग्जैक्टली क्या मिलता है, वी गेट बेंजल्डिहाइड। और अगर हम यहाँ पे बेंजीन से बेंजीन को कर रहे हैं अगर रिएक्ट तो बेंजल्डिहाइड मिलेगा, बेंजीन के अगर किसी डेरिवेटिव को कर रहे हैं तो शायद हमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। हमने गेटमैन रिएक्शन अलग पढ़ा था, ठीक है, गेटमैन रिएक्शन हमने पढ़ा था, राइट। वी रेड इट, वेयर डिड वी रीड इट, कैन यू इफ यू कैन क्विकली रिकलेक्ट एंड टेल मी हमने कहाँ पढ़ा था। हमने एक्चुअली गेटमैन रिएक्शन पढ़ा था उसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में, राइट। तो क्या आप मुझे एग्जैक्टली रिएक्शन बता सकते हैं, हाउ डू वी गो अबाउट इट। अब हम एग्जैक्टली उसमें ये एक्चुअली हमने रिएक्शन पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में, जहाँ पे हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, एक मिनट, जहाँ पे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की मदद से वी आर प्रिपेयरिंग हेलो एरीन्स। तो हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं कॉपर मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ हैलोजन एसिड लाइक HCl या HBr, जो भी हम यूज़ करते हैं, टू इवेंचुअली गेट या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम वो करते हैं, तो वो गेटमैन रिएक्शन था, गेटमैन कोच रिएक्शन है, डू नॉट कंफ्यूज द टू। तो बेंजीन का रिएक्शन जब हमने कराया कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विच इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड, कुछ भी ले लो, कॉपर 1 का सॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू गेट बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे CHO बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर आपने कोई बेंजीन का सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव लिया होता है तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। ना बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आई विल हाइड दीज, ठीक है, मैं इनको हाइड करती हूँ। सो नन ऑफ यू थिंक हम ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नहीं, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, ना कि आप कॉपी पेस्ट कर पाएँ, सो दैट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस इवन योर ऑफ द बिलीव कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। बिकॉज see once the concept is damn clear, solving the exam is relatively becomes super easier। तो वो तो easy हो ही जाता है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा zoom in बड़ा करते हैं, ठीक है। we've hidden this, इसको हाइड कर देते हैं, and the last one is this, okay, I think we're good to go। चलो अब हमने हाइड कर दिया, अब let's see exactly question में क्या पूछा है and how do we go about it। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है गिव द नेम्स ऑफ द रिएजेंट्स टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। कौन से हम रिएजेंट्स को यूज़ कर रहे हैं ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। हेक्सेन 1-ol टू हेक्सेनल, हेक्सेन 1-ol का रिएक्शन हम करा रहे हैं। हेक्सेन 1-ol को हमें कन्वर्ट करना है हेक्सेनल पे। मैं बाकी के क्वेश्चन नहीं लिखूँगी, ये तो लिख दिया मैंने बस। हेक्सेन 1-ol मतलब हेक्सेनोल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को हम कन्वर्ट करें एल्डिहाइड्स में। तो प्राइमरी अल्कोहल्स को अगर हमें एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करना है तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं, बट फिर एल्डिहाइड्स फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज़ वाई टू प्रिवेंट दैट हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि PCC या PDC, PDC इन डाइक्लोरोमीथेन यूज़ कर सकते हैं, राइट। PCC PDC यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, PCC PDC यूज़ कर सकते हैं, राइट। अरे सॉरी 1 सेकेंड, PCC PDC, अरे ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड गाइस, ठीक है, बाद में इरेज करते हैं। PCC PDC यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सेनोल टू साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोल। अब हमें क्लियरली पता है, देखो साइक्लोहेक्सेनोल, प्लीज़ हाँ स्ट्रक्चर बनाने मत बैठ जाना बिकॉज ये बहुत क्लियर सिंपल है, बट मैं आपको एक समझा दे रही हूँ। साइक्लो, ठीक है, क्लोज चेनर हेक्सेनोल, हेक्सेनोल, ठीक है,
साइक्लो क्लोज स्ट्रक्चर 6 कार्बन एटम्स है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है एंड एक अल्कोहल है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल को हमें कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेनोन में। तो हम क्लियरली देख सकते हैं OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, और ये तो हमें वैसे ही पता चल रहा है 2 डिग्री अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज करते हैं कीटोन में। अगेन यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग भी एजेंट भी ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो तो आप ले सकते हो PCC, PDC, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो कि ठीक है एनीथिंग, जैसे कि लेट्स से जोन 3 एजेंट ले लिया विच इज CrO3 aqueous H2SO4, ठीक है, ये सब ले सकते हो। आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम ले सकते हैं पैराक्लोरोटोलिन, सॉरी उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद द नेक्स्ट रिएक्शन इज पैराफ्लोरोटोलिन को हमें कन्वर्ट करना है पैराफ्लोरोबेंजाल्डिहाइड में। तो अब आप इसको पैराफ्लोरो से मत देखो, वो तो सब्स्टिट्यूएंट है पैराफ्लोरो, पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन है। टोलिन को हम कन्वर्ट करें बेंजाल्डिहाइड में। हमने आई गेस ऐसे रिएक्शन किया था, राइट, हमने इनफैक्ट 2 रिएक्शन किए थे इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, जहाँ पे हम टोलिन को कन्वर्ट करें बेंजाल्डिहाइड में। क्या है रिएक्शन, एक है यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, और जिसको और हम इटाज रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरा है हम यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। तो हम एक्जैक्टली क्या कर रहे थे, जिसमें हम टोलिन, ठीक है, हमारे पास टोलिन था, मिथाइल बेंजीन में थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगी। मिथाइल बेंजीन हमने क्रोमाइल क्लोराइड लिया था विच वाज CrO2Cl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट, तो इंटरमीडिएट जनरेट हुआ था, ठीक है। हमें वो सब तो बताना ही नहीं, हमें बस ये बताना है कि कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो हम वैसे ही बता सकते हैं। वी गॉट द आंसर, क्रोमाइल क्लोराइड ले लो, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। बिकॉज अगर क्रोमाइल क्लोराइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, हमें क्या एक वो मिल रहा था, हमें इंटरमीडिएट CH विच वॉज OCrO HCl2 होल ट्वाइस, ठीक है, यही मिल रहा था। और इसका जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है अपना बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या ले रहा है, ये ले रहा है पैराफ्लोरोटोलिन, पैरा पोजीशन पे, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस इज द मेटा पोजीशन एंड दिस इज द पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे एक फ्लोरो है, तो यू नो बिल्कुल सेम एज इट इज चलेगा पूरे रिएक्शन में, पैरा पोजीशन पे फ्लोरो आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया पैराफ्लोरो बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पे रिएजेंट हम क्या यूज़ करें, CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एक आज रिएक्शन लग गया। या फिर आप इसको यू नो सेम चीज़ को यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी में हम टोलिन को जब हम किसमें बेंजाल्डिहाइड में चेंज करें, हम क्रोमिक ऑक्साइड भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एक रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं जिस क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है। दिस वुड बी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये वाला रिएजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद हम अलाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोपिनल में। अलाइल अल्कोहल क्या होता है, C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट कार्बन होती है, उस पर OH ग्रुप अटैच्ड है, 2 बॉन्ड 3 कितने 1 2 तो CH2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि अलाइल अल्कोहल C डबल बॉन्ड C के बगल वाली जो कार्बन होती है, अगर वो sp3 है, हाइब्रिडाइज्ड है, और उस पर अगर OH ग्रुप है, दैट्स अलाइल अल्कोहल। वेल लेट्स नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है। 1 डिग्री अल्कोहल को जब हमें यू नो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करना होता है, ऑफकोर्स हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, PCC, PDC, ठीक है। अभी तक हमने एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बात की थी उसको बात नहीं की, कॉलिन्स रिएजेंट भी ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट है लास्ट वाला, ब्यूट-टू-ईन को हमें कन्वर्ट करना है, ब्यूट-टू-ईन को हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। आप कह रहे हो कि ब्यूट-टू-ईन 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं, हम 2 कार्बन कंपाउंड्स में कैसे बनाएंगे, तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ठीक है। ब्यूट-टू-ईन क्या होता है, एक मिनट देखो, ब्यूट-टू-ईन 1 सेकेंड, आई एम सॉरी, 1 2 3 4, ठीक है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। सारी रिमेनिंग वैलेंसीज को क्विकली सेटिस्फाई करो। ये एक बॉन्ड बना है, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ मतलब यहाँ 3 बॉन्ड ने 1 बॉन्ड, यहाँ ये, तो वी गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ पे देखा एल्कीन को हमें करना है एल्डिहाइड्स में, तो हमने क्लियरली पढ़ा था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रिकलेक्ट, ओजोनोलिसिस पढ़ा था, ओजोनोलिसिस हो सकता है, ठीक है, कि डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे दो, ठीक है, CH3 CHO, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH3 CHO, ठीक है, CH3 CHO। तो हम ब्यूट-टू-ईन को यू नो इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस में हमारे जो रिएजेंट्स यूज़ हो रहे थे वो क्या थे, सबसे पहले तो ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, फॉलोड बाय जिंक डस्ट विद यू नो वाटर, जिंक डस्ट और वाटर, ठीक है, यही हो रहा था। एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी गो अबाउट इट, एंड नाउ यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ, यू कैन चेक द आंसर्स फॉर योर सेल्फ। 1 मिनट, 1 सेकेंड, ग्राफिक्स पिक्चर्स, delete. I hope now you can see the answers for yourself, ठीक है। Did I miss out on something? Well, okay, इथेन नाइट्राइल, या ये वाला मिस आउट कर दिया, which is why I said, ठीक है। इथेन नाइट्राइल की अगर मैं बात करूँ तो इथेन नाइट्राइल को हम इथेनॉल में जब चेंज करते हैं, ठीक है, इथेन नाइट्राइल
ठीक है। R-C-triple-bond-N का रिएक्शन हमें इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टीफेंस रिएक्शन लगा सकते हैं या फिर हम डाइबाल्ज करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रिएक्शन एल्काइल साइनेट्स का जब हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है, ये रिडक्शन तो हाइड्रोजन गैस ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 विच इज टैनस क्लोराइड एंड HCl। तो हमें एग्जैक्टली क्या मिलता है इवेंचुअली, हमें सबसे पहले तो ये पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाता है, इमीन मिलता है, ठीक है। फिर हम जब उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस से वाटर का O इधर आ जाता है, H2 इधर आ जाता है, वी गेट RCHO एंड NH3, ठीक है, NH3 मिल जाता है, दिस इज व्हाट वी गेट। तो या SnCl2 HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस या डाइबाल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओ आई एम सो सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, शैल वी, ऑलराइट, ठीक है। अब हम क्विकली बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की, एंड देन विल बी गुड टू गो। ये है, दीज आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स विच पर्टेन स्पेसिफिकली टू कीटोन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की जब मैं बात करती हूँ, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कीटोन्स को यूजिंग असाइल क्लोराइड्स। अब देखो, हमने एल्डिहाइड्स को भी बनाया था यूजिंग असाइल क्लोराइड्स, जो था रोसेनविंग्स रिडक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है रिएक्शन, तो प्लीज़ पे अटेंशन, थोड़ा सा अलग है। वी प्रोसीड इन अ डिफरेंट मैनर, अप्रोच हमारी थोड़ी सी अलग रहती है। तो लेट्स सी हाउ डू वी गो अबाउट इट। अब एग्जैक्टली अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वी आर ट्रीटिंग असाइल क्लोराइड्स या एसिड क्लोराइड्स विद डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एसिड क्लोराइड्स को हम ट्रीट कर रहे हैं विद डाई एल्काइल कैडमियम, बट हम ये यहाँ तक पहुँचे कैसे, उससे पहले हम समझते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस डाई एल्काइल कैडमियम वी हैव टू रिएक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कैडमियम क्लोराइड। तो हम एग्जैक्टली क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम सबको पता है RMgCX, तो यू पे अटेंशन हियर, ठीक है। RMgX का रिएक्शन हम कराते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ विच इज CdCl2, ठीक है। कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो एग्जैक्टली हमें क्या मिलता है, हमें क्लियरली देख सकते हैं। देखो, मेटल पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ से दिस इज हाउ वी ड्रॉ पैरेलल्स, और हम देखते हैं कि हम हाउ डू वी प्रोसीड इन द रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल और क्लोराइड है, ऑफकोर्स हमें पता है हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम 2 मोल्स लेते हैं इसके, ठीक है। तो ये जो कैडमियम है, ये इस अल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा R2CD विच इज़ डाइअल्काइल कैडमियम, ठीक है। और ये Cl2 जिस पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे अटैक करेगा। Mg पे पहले एक X तो था ही, अब Mg पे क्या आ जाएगा, एक Mg पे X था, अब Mg पे एक Cl भी आ गया, ठीक है। तो MgXCl, ठीक है। अब ये Cl बैक साइड से अटैक करता है टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं जो डाइअल्काइल कैडमियम है, डाइअल्काइल कैडमियम, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो हमने डाइअल्काइल कैडमियम प्रिपेयर किया। अब उसके बाद क्या होता है, अब मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ, ठीक है। नहीं, हाँ, हमने डाइअल्काइल कैडमियम प्रिपेयर किया। अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक एसिड क्लोराइड, 2 मोल जी लेते हैं, वैसे RC+Cl। हमने एसिड क्लोराइड लिया, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हमने इससे कराया जो डाइअल्काइल कैडमियम हमने अभी प्रिपेयर किया है। अब यहाँ क्या होगा, बहुत सिंपल है, देखना समझना। ये जो एल्काइल है, ठीक है, ये जो एल्काइल ग्रुप है डाइअल्काइल कैडमियम में, एक एल्काइल ग्रुप इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ये Cl इस कैडमियम के साथ रिएक्ट करेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सी हाउ डू वी गो अबाउट इट, R-C+O, मतलब सॉरी R'(C+O), ये एक जो डाइअल्काइल कैडमियम का एल्काइल ग्रुप है वो कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ आ जाएगा R, तो इट विल बी R'(C+OR), कैडमियम के साथ क्लोराइड रिएक्ट करके बना लेगा कैडमियम क्लोराइड। पापा, तो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। एग्जैक्टली हम कैसे करते हैं, अब मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको थोड़ा आराम से तसल्ली से समझाती हूँ कि हाउ डू वी प्रिपेयर कीटोन्स, ठीक है। अब देखो कैसे होता है एग्जैक्टली। तो लेट अस सी, देखो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो हम लेते हैं RMgX, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम कराते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। कैडमियम क्लोराइड के साथ कराता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऐसे कर सकते हैं ना कि देखो, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तुम्हें पता है मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 एल्काइल है, राइट। तो हम कह सकते हैं कैडमियम इस एल्काइल ग्रुप के साथ एल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है, यहाँ बन जाता है डाइअल्काइल कैडमियम, ठीक है। डाइअल्काइल कैडमियम बन जाता है जो कि एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। और ये जो Mg+X है, इस पर ये Cl- रिएक्ट करता है, ये बन जाता है Mg, X तो था ही और ये Cl, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MgXCl, हाउएवर यू लाइक इट, ठीक है। अब ये हो गया
एक दूसरा प्रोडक्ट, अब हमें एक्चुअली जो हमारे काम का प्रोडक्ट है वो है डाई अल्काइल कैडमियम। अब हम डाई अल्काइल कैडमियम का रिएक्शन कराते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ। एसाइल या एसिड क्लोराइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल का रिएक्शन, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, आर टू सी डी के साथ, विच इज़ डाई अल्काइल कैडमियम के साथ कराया। तो हमें क्या होगा, हमें सबको पता है। तो इसमें अब क्या होता है ना, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन कैडमियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो द प्रोडक्ट दैट वी एक्चुअली ऑब्टेन इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इसको लेट्स से आर डैश ले ले रहे हो बाइफर्केट करने के लिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये एक अल्काइल जो है डाई अल्काइल कैडमियम का, ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा आर, और ये कैडमियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके बना लेगा कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये कैडमियम क्लोराइड जो हुई, ये जो कैडमियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हुई है, वी कैन क्लियरली सी, ये दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके डाई अल्काइल कैडमियम बनाएगी। एंड देन हाउ दिस इज, मतलब ये एग्जैक्टली दिस इज हाउ द रिएक्शन वर्क्स, ये लूप में चलता रहेगा रिएक्शन, ठीक है। मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा सकूँगी तो आई डेफिनेटली वुड, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल की मदद से अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास CH3COO, नहीं सी, ओके 1 सेकेंड, दो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास CH3, 1 सेकेंड, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, समथिंग हैपेंस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके सो आई फिक्स द इशू। हम क्या बात कर रहे थे, या हमने लिया 2 मोल्स ऑफ CH3COCl, इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, इसका रिएक्शन हम सबसे पहले करेंगे डाई अल्काइल कैडमियम के साथ, क्योंकि अब मैंने आपको सिखा तो दिया डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनाते हैं। तो हमने एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराया डाई अल्काइल कैडमियम के साथ। अब वो डाई अल्काइल, लेट्स से मैं ले लेती हूँ डाई मिथाइल कैडमियम, ठीक है। तो एग्जैक्टली हाउ डू वी गो अबाउट इट इन द रिएक्शन दिया, क्या होता है, या फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु लिसनिंग, इसमें हम जैसे कि मैंने बताया जो डाई अल्काइल कैडमियम का एक अल्काइल ग्रुप है, हम इसको कार्बन पे रिएक्ट कराते हैं और ये क्लोरीन कैडमियम के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ही मिलते हैं, वैसे 2 मोल्स ही मिलते हैं, बैलेंस हम बाद में कर लेंगे रिएक्शन को। यहाँ हमें मिलता है समथिंग कॉल्ड एज, देखो CH3 सी डबल बॉन्ड हो, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा तो हमें मिला CH3, और ये CD कैडमियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैडमियम क्लोराइड बनाता है। तो एक्चुअली ऑब्टेन इज एसीटोन, हम क्लियरली देख सकते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस कैडमियम क्लोराइड, ठीक है, हमें ये मिलता है एग्जैक्टली। आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना सबको समझ में आया, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ Cl का रिएक्शन जब हम कराते हैं कैडमियम डाई इथाइल, अभी हम डाई अल्काइल में, अभी हमने डाई मिथाइल लिया था, हम डाई इथाइल ले लेते हैं, C2H5 होल ट्वाइस CD, ठीक है, डाई इथाइल कैडमियम के साथ कराते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट वंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत सिंपल है, बस इट्स अबाउट व्हाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बिकॉज वो रिवाइज नहीं करते हैं। सो रेपिटेशन इज द की टू मास्टरी, आई टेल यू, रेपिटेशन स्पेशली इन ऑर्गेनिक सब्जेक्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the reaction should be on your fingertips, and how do you get the reactions on your fingertips? By revisiting these reactions, ठीक है। So you have to revisit the concept multiple times in a week so that until it gets drilled into your head, तो आपसे फिर कोई randomly भी कोई reaction उठा के पूछेगा, you will be good to go, ठीक है। So बस keep revising, repetition is the key, okay। तो अब जैसे कि हम बात कर रहे थे एसिड क्लोराइड का, जब हम रिएक्शन कराते हैं डाईथाइल कैडमियम के साथ, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये कार्बोनल कार्बन पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ है, और ये क्लोरीन कैडमियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैडमियम क्लोराइड। सो द प्रोडक्ट दैट यू एक्चुअली ऑब्टेन इज CH3 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 CdCl4 एज यू कैन क्लियरली सी, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एन, सेकंड कार्बन पे कीटोन है तो ब्यूटेन 2 ओन, एंड दिस इज कैडमियम क्लोराइड। आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। 1 2 और रिएक्शंस बचे हैं एंड उसके बाद विल बी गुड टू गो, ओके। लेट्स प्रोसीड अकॉर्डिंगली। I think we'll keep the video till here only, I guess. Remaining reactions along with physical properties we will continue in the next video because my battery is about to die. It's nearly 5%, so it might die out anytime. So yeah, we'll continue with the remaining reactions in the next video. Until then, keep revising, keep revisiting the concepts, keep learning and have fun. And yeah, this is Dia signing off. Bye bye. Until we meet again in the next video. Bye bye.